Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss about the string matching algorithms from the subject Design and Analysis of Algorithm. In today's lecture I will discuss about what is string matching algorithm, what are the various types of string matching algorithms, and we will focus on two basic string matching algorithms, that is naive string matching or standard string matching and a finite automata matcher, right. Starting from the basic definition of string matching, we first understand that string matching algorithms are also string searching algorithms, right. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें, स्ट्रिंग मैचिंग का मतलब क्या है, दैट वी वर गिवन अ टेक्स्ट एंड अ पैटर्न पी. एक टेक्स्ट टी है, एक पैटर्न पी है. हमें पैटर्न को चेक करना है कि इज दिस पैटर्न अकर्स इन अ टेक्स्ट, राइट. हमें पैटर्न को सर्च करना है टेक्स्ट के अंदर, राइट. सो व्हाट वी आर गिवन अ टेक्स्ट टी of length n and a pattern p of length m. We have to search a pattern in a text t, that whether a given pattern occurs in a text or not. If a given pattern occurs in a text with these number of shifts, then we have to return the value of that s, that is these are the valid shift after which a pattern occurs in a text. Starting from the basic definitions of this, string matching algorithm is also called as string searching algorithm. That is, हम एक पैटर्न को टेक्स्ट में सर्च कर रहे हैं. स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स गिवन अ टेक्स्ट एरे दिस, हमारे पास एक टेक्स्ट की एक एरे है 1 से लेके n तक, जिसमें हमारे पास n कैरेक्टर्स हैं. उसके बाद हमारे पास एक पैटर्न की एरे है p1 से लेके m तक, जिसमें हमारे पास m कैरेक्टर्स हैं, राइट. द प्रॉब्लम्स आर टू फाइंड एन इंटीजर s. हमें एक s इंटीजर निकालना है, दैट इज दीज आर द नंबर ऑफ वैलिड शिफ्ट आफ्टर विच अ पैटर्न अकर्स इन अ टेक्स्ट. अब ये चीज हमने कैसे लिखी, हमने इसको ऐसे लिखा कि एक मान लो पैटर्न है, उसकी लेंथ है 6, एक टेक्स्ट है उसकी लेंथ है 20, राइट. अब हम क्या कर रहे होंगे, जब तक हमारा कोई शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट 0, तो हम क्या कर रहे होंगे, पैटर्न का पहला कैरेक्टर टेक्स्ट के पहले कैरेक्टर से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, छठा छठे से, ऐसे हमारी मैचिंग हो रही होगी. फिर जब एक शिफ्ट हो जाएगी तो पैटर्न का पहला कैरेक्टर टेक्स्ट के दूसरे कैरेक्टर से, 2 शिफ्ट के बाद पैटर्न का पहला कैरेक्टर टेक्स्ट के तीसरे कैरेक्टर से. ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे होंगे. उसी प्रोसेस को हमने फॉर्मलाइज करा है इस तरह से. पैटर्न का पहले कैरेक्टर से लेके लेंथ ऑफ पैटर्न तक जाएंगे, और इसकी मैचिंग जो चल रही होगी वो किससे चल रही होगी, टेक्स्ट से. टेक्स्ट का s+1 से लेके s+m तक. और शिफ्ट कितने पॉसिबल हैं, 0 से लेके n-m तक. So what is a key takeaway from here is that we were given a text t of length n and we were given a pattern p of length m. Now the problem is to find a integral value of s that represent a number of valid shifts after which a pattern occurs in a text. Or shifts can be from 0 to n-m. So this is a formalization, ts+1 से लेके s+m और p1 से लेके pm. In other words, we will find p in t, that is p is a substring of t, right. Basically हम क्या कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट का एक सबस्ट्रिंग ही तो पैटर्न है, that we have to search in a text. और given a string this, the substrings are represented by this for some this, and the string formed by the characters in t from index I to index j is inclusive, and this process data string is a substring of itself. So the basic takeaway from this slide is that string matching are string searching algorithms. The basic definition of string matching is we are given a text of length
n and a pattern of length m, we have to search a pattern in a text in such a way that we will return a number of valid shift after which a pattern occurs in a text using this formalization ts plus 1 up to sm equals to p1 से लेके m तक. Next, there are various algorithms used for string matching. First is a naive or standard string matching algorithm. Second is a finite automata. Third is a Rabin-Karp. Fourth is a Knuth-Morris-Pratt, and fifth is a Boyer-Murray. Giving a brief insight of this naive is an n-square complexity string matching algorithm. Right. Finite automata is also n square. This is Knuth-Morris-Pratt. Here we compute a prefix function and the complexity of this is reduced from n square to n. Similarly, this we compute last function. Here also the complexity is n for the good suffix values. This we will see later on, right. So, the basic definition that comes out in the picturization is, we were given a text and a pattern. We have to search a pattern in a text and return the number of valid shift after which pattern occurs in a text. मतलब हमें तो नंबर पैटर्न को सर्च करना है टेक्स्ट में और रिटर्न कर दें नंबर ऑफ वैलिड शिफ्ट आफ्टर विच द पैटर्न अकर्स इन अ टेक्स्ट. नाउ दिस इज अ naive or standard string matching algorithm. So, naive approach test all the possible placement of patterns, सारे possible placement of patterns relative to text p1 से लेके m तक, relative to text 1 से लेके n तक. We try shift s equal to 0, 1, n minus 1 successively and for each shift s. मतलब हमारे पास एक पैटर्न गिवन है 1 से लेके m तक, एक टेक्स्ट गिवन है 1 से लेके n तक. We try to shift s equal to 0 से लेके n minus x successively and for each shift s compare this. This we have already discussed. Now, how the pseudocode of this is working? This is an algorithm naive string matching T or P. T is a text and P is a pattern. So, first step is n में हमने store करा लिया length of T. That is length of T is stored in a n. m में हमने स्टोर करा दिया लेंथ ऑफ अ पैटर्न. मतलब टेक्स्ट की लेंथ को हमने n में स्टोर कराया और पैटर्न की लेंथ को हमने m में स्टोर कराया. और अब हमने बात करी एक फॉर लूप के थ्रू जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हो सकते हैं 0 से लेके n माइनस m तक. और अब हम क्या कर रहे हैं, एक इफ कंडीशन में इफ p 1 से लेके m तक इज इक्वल टू टी s प्लस 1 से लेके s प्लस m तक, हम इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं देन प्रिंट पैटर्न अकर विद अ शिफ्ट s. एग्रीड. तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, शिफ्ट जब 0 है तो p1 t1, p2 t2, p3 t3, p4 t4, p5 t5, p6 t6. शिफ्ट अगर 1 है तो p1 का t2 से, शिफ्ट अगर 2 है तो p1 का t3 से. इस तरह से हम इसमें आगे प्रोसीड कर रहे होंगे. एनालिसिस. दिस फॉर लूप from step number 3 to 5 executes n minus m plus m time. ठीक है. अब ये मेरा फोर लूप टाइम ले रहा है. अब इस फोर लूप में हर बार पैटर्न के, ये तो शिफ्ट के लिए है, इस फोर लूप में हर बार पैटर्न के एक एक कैरेक्टर को जब टेक्स्ट से मैच करेंगे तो हम इस चीज को क्या कह रहे होंगे, n माइनस m प्लस 1 इंटू m. दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी. एग्रीड. सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑन अ बेसिक naive string matching algorithm. Here we were given a text this, we were given a pattern this. We have to find the number of the valid shift using a naive string matching algorithm. Number of valid shift हमने यहाँ पर रिटर्न करने हैं और हमें पूरा टेक्स्ट को ट्रेवर्स करना है. तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीपिंग इन माइंड दिस फॉर्मलाइजेशन टी एस प्लस 1 अप टू एस एम पी 1 अप टू एम. तो व्हाट वी विल डू इज पैटर्न और टेक्स्ट का पहला कैरेक्टर
मैच किया, नहीं हुआ। पहले कैरेक्टर को मैच करने के बाद हम आगे पहुंचे, ये दोनों मैच नहीं हुए, तो हमने कहा कि शिफ्ट 0 पे पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में आकर नहीं कर रहा है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर शिफ्ट 1। हमने शिफ्ट 1 करा, पैटर्न के पहले कैरेक्टर को टेक्स्ट के दूसरे कैरेक्टर से मैच कराया, दोनों मैच नहीं हुए, तो हमने कहा जब पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो पैटर्न कैसे टेक्स्ट से मैच हो सकता है। हमने कहा एक शिफ्ट और आगे बढ़ा देते हैं और हमने इसको कर दिया s इक्वल टू 2। अब हमने P1 को T3 से कंपेयर करा, दोनों मुझे इक्वल मिले, फिर P2 को T4 से कंपेयर करा, दोनों मुझे इक्वल मिले, और फिर P3 को T5 से कंपेयर करा, फिर मुझे दोनों इक्वल मिले। अगर ये तरह की इक्वल मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दी तो मैंने यहाँ पे कहा वैलिड शिफ्ट s इक्वल टू 2 पे हमने ये देखा कि पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में आकर कर रहा है। एग्रीड। अब ये तो हो गया s इक्वल टू 2 पे एक वैलिड शिफ्ट पे हमारा पैटर्न टेक्स्ट में आकर कर रहा है, लेकिन s इक्वल टू 3 पे हमने इसको फिर से शिफ्ट करा ये देखने के लिए कि टेक्स्ट में आगे जाके तो कहीं पैटर्न आकर नहीं कर रहा है। तो हमने s इक्वल टू 3 पे देखा, ये दोनों मैच हुए, ये मैच हुआ, ये जाके मैच नहीं हुआ, और हमने कहा कि हमें फिर से शिफ्ट करना होगा पैटर्न को टेक्स्ट से मैच कराने के लिए। हमने s इक्वल टू 3 से हम s इक्वल टू 4 पे आ गए। हमने पहले से मैच करा, ये दोनों मैच नहीं हुए, हमने फिर से इसको कहा कि एक और शिफ्ट करना पड़ेगा फर्दर हमें इसमें मैचिंग करने के लिए। s इक्वल टू 5 पे गए, दोनों कैरेक्टर्स को मैच करा, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हुए, दैट इज P1 जब हमारा जाके T6 से मैच हुआ तो मैच नहीं हुए, तो हमने फिर से s इक्वल टू 6 करा, एक और वैलिड शिफ्ट करा। एक और वैलिड शिफ्ट में ये मैचिंग हुई, ये मैचिंग हुई और ये मैचिंग हुई। जब ये मैचिंग हो गई तो हमने कहा भाई s इक्वल टू 6 पे भी एक वैलिड शिफ्ट है जब हमारा पैटर्न टेक्स्ट में आकर करता है। ऐसे ही हमने s इक्वल टू 7 पे देखा तो ये मैच नहीं करा, तो हमारा यहाँ तक कंक्लूजन ये था कि s इक्वल टू 2 पे और s इक्वल टू 6 पे हमारा पैटर्न टेक्स्ट में आकर कर रहा है। अब इसी पे अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जो थे वो S7 निकल के आया। क्यों निकल के आया? मेरी जो लेंथ थी टेक्स्ट की लेंथ मेरी थी कितनी? 3, 3, 6 और 4, 10, और पैटर्न की जो लेंथ थी वो मेरे पास थी 3। तो डायरेक्ट मुझे समझ में आ रहा था कि जो शिफ्ट होंगे वो कितने होंगे? 0 से लेके 0 टू n-m, दैट इज 7। और जब 0 शिफ्ट है तो मतलब कोई भी शिफ्ट नहीं, एक एक करके पैटर्न के हर कैरेक्टर को टेक्स्ट से मैच किया, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पे अगर एग्जाम्पल पे मैं बात करूं तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा 2 ही कंडीशन ऐसी थी, जब शिफ्ट 2 हुआ था s इक्वल टू 2, या शिफ्ट अगर 6 हुआ था मतलब s इक्वल टू 6, तभी हमारा पैटर्न टेक्स्ट में लाई किया था। दिस वॉज अ ब्रीफ ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब अगर मैं यहाँ से समझूं तो आप एक चीज़ समझ रहे होगे, भाई मुझे ये फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा ना n-m+1 से। अब n-m+1 क्या? 10 - 3 + 1 इज व्हाट? दैट इज 8 टाइम्स। तो ये चल ही रहा है ना, तो भाई मुझे तो फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा। अब इस फॉर लूप में n-m+1 में हो क्या रहा है वो तो यहाँ पे आएगा ना। हो क्या रहा है? पैटर्न का हर कैरेक्टर टेक्स्ट से मैच हो रहा है। भाई इन द वर्स्ट केस क्या होगा? पैटर्न के तीनों कैरेक्टर टेक्स्ट के तीनों कैरेक्टर से मैच हुए, तो इन द वर्स्ट केस व्हाट वी विल से, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय m। सो नाउ वी कैन से दैट n-m+1 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस मे गेट अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n²। सो दिस इज अ बेसिक नेव स्ट्रिंग मैचिंग algorithm. Agreed. Now moving ahead, we will discuss about a finite automata string matching algorithm. In finite automata, there are 2 types of machines, that is deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. And here we will see how the string matching can be done. So keeping in mind the basic definition of string matching,
that is a finite automation M is a 5 tuple machine, that is Q, Q naught, A, sigma and transition function, that is Q, Q naught, sigma, transition function and A. अब इसको क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, Q हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन, Q हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, कितनी भी स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स। Q नॉट हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट। सिग्मा हमारे पास क्या है, इनपुट अल्फाबेट। ए हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। और ये क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन विच टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस 1 आर्ग्यूमेंट एज एन आउटपुट। सो सी द डेफिनेशन ऑफ दिस, क्यू में क्या आया, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू नॉट एक स्टेट है जो स्टार्ट स्टेट है, ए जो है वो तुम्हारी एक्सेप्टिंग स्टेट्स या फाइनल स्टेट्स होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सिग्मा इज अ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट। और ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा को क्यू में रिटर्न करता है, क्यू क्रॉस सिग्मा रिटर्न्स क्यू, दैट इज आफ्टर रीडिंग एन इनपुट फ्रॉम वन स्टेट, दैट इज दिस इज अ स्टेट, स्टेट्स किसी स्टेट से कुछ इनपुट पढ़ के किसी स्टेट पे चले जाना is a transition function for this. Agreed? So what we will do here is finite automation starts in state Q naught and reads the characters of its input string one at a time. मतलब क्या, हम किसी एक इनिशियल स्टेट Q naught से शुरू कर रहे हैं और कैरेक्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। If the automation is in state Q and reads input character A, it moves from state Q to state this is the basic working of a transition function. Whenever its current state Q is a member of A, the machine is in the accepted state, otherwise the machine is in the rejected state. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक 5 टपल मशीन है। उस 5 टपल मशीन में Q का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, Q नॉट का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है और ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या है, राइट। अब दो तरह की मशीन्स होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन किसी स्टेट से कुछ इनपुट पढ़ के किसी स्टेट पे चले गए, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। मतलब हमें ये पता हो कि हम इस स्टेट पे जा रहे हैं, इस स्टेट से ये इनपुट पढ़ के इस स्टेट पे गए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इस स्टेट से ये इनपुट पढ़ के मल्टीपल स्टेट्स पे चले गए, दैट इज नॉन डिटर्मिनिज्म। So the basic difference between determinism and non-determinism is that we understand that after reading an input from this state we go to that state. Otherwise, after reading an input from this state we go to multiple state is called as non-determinism. Now the basic difference between the transition function of both is, in DFA this is this, in NFA we talk about Q cross sigma returns 2Q. दैट इज मल्टीपल स्टेट्स। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग मुझे गिवन है, उस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को रीड करा मैंने इनिशियल स्टेट से, यही मेरा प्रोसेस है। उस इनिशियल स्टेट से उस कैरेक्टर को रीड करा, कैरेक्टर रीड करने के बाद मैं किसी स्टेट पे चले गया, ऐसे ही एक एक करके सारे इनपुट्स को पढ़ता रहा। लास्ट इनपुट को पढ़ते हुए अगर मैं फाइनल स्टेट में चले गया देन इट इज एन एक्सेप्टेंस मोड, अदरवाइज it is a rejection mode. Now we will see the algorithm of finite string matching and its complexity. The complexity for this is n because what we are doing, whatever the string given to us we are searching it, right? तो जो भी string हमारे पास given है उसमें हम एक state से एक एक करके एक एक input को पकड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो whatever the length of a text, that is called as a कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फाइनाइट स्ट्रिंग मैचर। और जब फाइनाइट स्ट्रिंग मैचर की कॉम्प्लेक्सिटी n है, जब उसके बाद उसमें वो पैटर्न वाला कॉम्बिनेशन आएगा
तो उसको जब मैच करेंगे तो वो n इंटू एम ही होगी। वो देखते हैं कैसे। अब दिस इज टी, टी इज टेक्स्ट, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन एंड m इज अ पैटर्न लेंथ। अब n में मैंने स्टोर करा दिया लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट, q एक मैंने वेरिएबल लेके चला जिसको इनिशियलाइज किया 0 से। अब शुरुआत में क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके n तक, मतलब टेक्स्ट की लेंथ तक। और यहाँ क्या कह रहा हूँ, q में रिटर्न कर रहा हूँ ट्रांजिशन ऑफ q कॉमा टी आई। टी आई मतलब टेक्स्ट का जो इनपुट उठाया, एक उस q स्टेट से उस इनपुट को पढ़ के ट्रांजिशन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब उस स्टेट से इनपुट पढ़ के क्या रिटर्न हो रहा है वो मैं q में आ गया। अगर ये q m के बराबर है, अगर वो q m के बराबर है, देन s में आ जाएगा i माइनस एम एंड पैटर्न अकर विद शिफ्ट s। नहीं है तो इसी को मैं कैरीड फॉरवर्ड करता रहूंगा यहां पे। अब इसी एग्जाम्पल को यहां पे समझ लेते हैं। अब हमारे पास मान लो कोई फाइनाइट ऑटोमेशन मशीन गिवन है विच एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज ओवर इनपुट अल्फाबेट a, b, c। नंबर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सवाल क्या हो गया यहाँ पे, सवाल ये हो गया कि मेरे पास इनपुट तो है ए बी सी, इनपुट अल्फाबेट तो हो गए ए बी सी, इवन नंबर ऑफ जीरोस या इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए। अब एज पे उसने कंस्ट्रेंट लगाया। अब इवन नंबर ऑफ ए होना मतलब 2 ए हो, 4 ए हो, 6 ए हो, तो इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ एज होने का मतलब क्या, Q0 से A पढ़ के Q1, Q1 से A पढ़ के Q2, राइट। अब ये मैंने सिंपल सबसे स्मॉल ये बनाया कि Q0 से A पढ़ के Q1 गया, Q1 से A पढ़ के Q2 चले गया, और ये मैंने एक्सेप्टेंस दिखा दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, इसके A को मैं यहाँ करता रहूंगा तो 2, 4, 6, 8 इवन नंबर ऑफ एज की साइकिल मेंटेन्ड होगी। अब क्या ध्यान देना है कि बी और सी क्या है, वो तो कुछ भी होते रहे। यहाँ भी बी और सी आ गया, यहाँ भी बी और सी आ गया, और यहाँ पे भी बी और सी आ गया। तो ये मेरा एक एफ ए बन के आ गया, डी एफ ए बन के आ गया इवन नंबर ऑफ एज का। ठीक है, कि भाई इवन नंबर ऑफ एज, और कंडीशन उसमें गिवन थी कि नंबर ऑफ ए जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या निकली, डबल ए, 4 बार ए, 6 बार ए और 8 बार ए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि 3 स्टेट ली, 2 ए पढ़ के एक्सेप्टेंस में चले गए और वहां पे साइकिल बना ली 2, 4, 6, 8 के लिए, और बी और सी को हम कहीं भी पढ़ाते रहे। तो हमने पहले उसके ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करा, और ये मेरी एक फाइनल स्टेट थी। ठीक है, अब ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के बाद मैंने वहां पे स्पेसिफाई करा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 एक इनिशियल स्टेट है और Q2 एक फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट है। और ट्रांजिशन फंक्शन कैसे दिखाए, Q0 से A पढ़ के Q1 गया, Q0 से B पढ़ के Q0 रहा, Q0 से C पढ़ के Q0 ही रहा, Q1 से A पढ़ के Q2 गया, Q1 से B पढ़ के Q1 ही रहा, Q1 से C पढ़ के Q1 ही रहा, Q2 से A पढ़ के Q1 गया, Q2 से B पढ़ के Q2 ही रहा, Q2 से C पढ़ के Q2 ही रहा। और हमने सारे अपने नो के नो ट्रांजिशंस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया। अब अपना ऑब्जेक्टिव स्ट्रिंग मैचिंग का यहाँ से क्या आता है कि अगर मान लो मेरे पास ये कोई स्ट्रिंग है इस तरह से, W में कोई स्ट्रिंग इस तरह से मुझे गिवन है। अब इसको मैं सिंपल क्या लिखूंगा कि ट्रांजिशन ऑफ Q0, और ये मेरे पास स्ट्रिंग। अब करना क्या है, मैं यहां से सिर्फ ये देखूंगा ट्रांजिशन ऑफ Q0 से B पढ़ के मैं कहां जा रहा था। Q0 से B पढ़ के तो Q0 ही रहूंगा ना। तो अब मैं नेक्स्ट आ गया, ये B मेरा हट गया यहां से Q0, और ये फिर मैंने देखा ट्रांजिशन ऑफ Q0 से C पढ़ के कहां रहूंगा, Q0 पे ही। नेक्स्ट स्टेट फिर Q0, यहां से C भी रिमूव हो गया। नेक्स्ट आया ट्रांजिशन ऑफ Q0 से A पढ़ के मैं कहां गया, Q1 पे। अब ये वाला A रिमूव हो गया, लेकिन यहां पे स्टेट Q1 आ गई। अब इस Q1 से A देखूंगा, ट्रांजिशन ऑफ Q1 विद A विल गो टू स्टेट Q2, तो ये मेरा A ये भी रिमूव हो गया,
और हम Q2 पे B आ गए। अब ट्रांजिशन ऑफ Q2 with B will go to which state? It remains at Q2, मेरा B यहाँ से हट गया। अब ट्रांजिशन ऑफ Q2 with C will remain at Q2 और ये यहाँ पे मेरा C भी हट गया। अब ट्रांजिशन ऑफ Q2 with A will return what? ये A पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा Q1 आया जिससे कि साइकिल फॉर्म हो रही थी। अब ये साइकिल फॉर्म होने वाला स्टेप यहाँ पे था। अब ये साइकिल फॉर्म हो रही थी तो Q2 से Q1 यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब A आया तो Q1 से फिर से A पढ़ा तो कहाँ जाऊंगा? Q2 पे A। Q2 पे फिर से A पढ़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? Q2 पे फिर से A पढ़ना मतलब Q1 पे आ जाना। Q1 से B पढ़ा तो किस जगह जाना होगा? Q1 पे ही रहना होगा। Q1 से फिर A पढ़ा, दिस इज A। Q1 से A पढ़ा तो हम पहुंच गए Q2 पे C लेके। Q2 पे C पढ़ा तो Q2 पे रहे और ये मेरी रही एक्सेप्टिंग स्टेट। और मैं यहाँ पे कह दूंगा कि फाइनाइट ऑटोमेशन accepts the given string which was given to us. So this was a finite automata string matcher. I have discussed in this lecture about what is string matching, what is a basic definition of string matching, also discussed about the two approaches, that is naive and standard string matching algorithm, as well as the finite automata string matching algorithm. In naive and standard string matching algorithm, I have discussed about the basic definition or working as well as the algorithm with its complexity, and also discussed the example on that. In the finite automata string matching algorithm, I have discussed about the tuples of finite automata, whether it is DFA or NFA, how the transition diagram is drawn, how the transition functions are written, and how we will show the string acceptance using a finite automata string matcher. So this was an example on finite automata string matcher. Thank you everyone. Hope you all have understood this lecture. Thanks a lot.